Okay, so here we go. So this is a quiz on management of natural resources, and this is the first question for you. Remember, this is a science quiz. We are going to have only 90 seconds for each and every answer. I give you only 90 seconds. So the first question over here, as you can see, is from the list given below, we have to pick the item that is not a natural resource. इसमें से क्या natural resource नहीं है? Which of them is not a natural resource? You have to tell us. I hope you have an idea of what natural resources are. And so, is it soil? Is it water? Or is it electricity? Or is it air? Which one of them is the natural resource? Which one of them is not a natural resource? Sorry. Which one of them is not a natural resource? Okay, that's great. So the results are, we have got 12 of us. It means all of us gave the correct answer. Congratulations. Yes, it is the electricity which is not a natural resource. Soil is a natural resource, water is a natural resource, and air is a natural resource. So good going, students. The first question was very easy and all of you did a very good beginning. Let's continue. Let's go to the question number 2. But before that, let's see the score. Okay, so it's again Usha who's on top, followed by Ashay, Astha, Rishi and Pawan. Let's move ahead for question number 2 and let's see what is stored for us. Okay, so this is the second question of all 30 questions. The most rapidly dwindling natural resource in the world is? What is the most rapidly dwindling natural resource? You should be aware of the word dwindling natural resource. The one which is getting exhausted very quickly, right? Which is getting used up very quickly. So it's a tricky one. Is it water? Is it forests? Is it wind? Or is it sunlight? The most rapidly dwindling natural resource in the world. So let's see how many of you get this right. Okay. We have got last 30 seconds left. Okay, Aman says, Aman, you have given some answer on the chat also. Pawan also has given, but a different answer. I am not going to disclose your answers right now. Wait for the time to get over. Okay. Aman is completely confused. Completely confused between water, between forest, between sunlight and wind. So last 3 seconds, guys. 2 and the time's up. Let's see the results. It is 3 students who have given the right answer, as you can see. Only 3 students. 4, 5, 6, 7, 8 of them went wrong. So a very tricky question. The question was the most rapidly dwindling natural resource. So it is, you should understand, it is the forests which are getting, used up very quickly. As the population is increasing, the use of forests is there, right? As the population is increasing, we are cutting more and more trees. Okay, so the forests are disappearing very quickly now. Sunlight is already there. I don't know why some of you have given sunlight. Sun जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, right? So it is the most dwindling natural resource. Which is that? It is the forest. Let us see the scores. So guys, the scores is, we have got Janvi leading right now. Second is Afra, then Astha, then Usha, and then comes Ashay. So well done, guys. Let's move on to the next question. See what is
stored for us for the next question. देखते हैं next question क्या है. So this is the third question, guys. The most appropriate definition of a natural resource. Most appropriate. You've got 4 definitions right now here. Which is the most appropriate one out of them? Substance that is present only on land, that is called the natural resource, or a gift of nature which is very useful to mankind, or a man-made substance placed in nature, or is it the available only in the forest? What is the question? The question is, which of them is the most appropriate definition of a natural resource? Come on. Some of you have still not answered. Let's see. Who scores how many? Okay, so here we are. 11 students have got it correct. Only one of them have got it wrong. And the right one is, the most appropriate definition of a natural resource is that a substance that is a gift of nature. So natural resource is a kind of a gift given to us by the nature, which is very useful to mankind. Yes, right? It is very useful. So all that gifts, the natural resources are kind of a gift which is given to us. So we need to be very careful about them. And one of them who has gone wrong has clicked available only in the forest. No. So let's see what the scores are after this particular point. Janvi is leading with 2,676 points, followed very closely by Afra. Then comes Astha, Usha and Nitish Mohanty. And computer says Janvi has a streak with 3 correct answers in a row. Good going Janvi. She's on fire right now. Let us proceed. चलते हैं अपने next question पर. Next question, question number 4. Listen carefully. The pH of water sample collected from a river was 3.5. The pH was 3.5. The effluents of which factory is responsible for lowering of pH? You know pH. pH is a number which tells us whether a particular effluent मतलब जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, whether जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसका pH 3.5 है, इनमें से किस फैक्ट्री से निकलने वाला एफ्लुएंट? यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ दी हुई हैं. सोप फैक्ट्री, लिसन केयरफुली, लेड बैटरी फैक्ट्री, प्लास्टिक कप मेकिंग फैक्ट्री एंड अल्कोहल डिस्टिलरी. इन चारों में से कौन सी फैक्ट्री का एफ्लुएंट जो बाहर निकलता है, यानी कि जो गंदा पानी है, वो रिवर में गया और जिसके कारण रिवर का पीएच कम हो गया? रिवर का पीएच 3.5 हो गया. यू नो, इफ द पीएच goes to 3.5, most of the fishes or most of the organisms which are living over there will die, because a pH of 3.5 is a very low pH and is not good for the health of all these fishes and plants living over there. So we need to be careful that all these effluents should not directly go into the river. So they should be treated first and then these effluents should be let into the river. और वो कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री है? And time is up. So we have got only 2 persons giving the correct answer, as you can see over here. Only 2%. And 4, 5, 6, 7, 8 have gone wrong. So a whole lot of different answers. किसी ने बोला भाई वो सोप इंडस्ट्री है जिसके कारण ये एफ्लुएंट्स के कारण रिवर का वाटर का पीएच इतना कम हो जा रहा है. सोप इंडस्ट्री, आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट सोप इंडस्ट्री. कुछ लोगों ने बोला इट इज़, लॉट ऑफ देम सेड इट इज़ प्लास्टिक कप मैन्युफैक्चरिंग. ओके, and some of you and one of you has said it is the alcohol distillery because of the effluent from the alcohol preparation that is
creating this problem. But the correct answer is the lead battery manufacturing factory. Lead battery. These lead batteries are used in your cars, in your buses, in your scooters, in your motorcycles. Everywhere these lead batteries are being used, and nowadays they are used in our homes, in inverters also. So that's a very big industry of lead battery which is creating, because lead battery uses acid, that there is an acid present inside them. So maybe because of all the effluents going from that factory, the pH is getting as low as 3.5, right? Okay, so let's see what's the scores are. So Janvi is leading with 2676 points, followed by Afra, Asta, Hitesh, and then Usha. And the computer says combo breaker, 3 players have just dropped their answer streak of 3. I understand that ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा जनरल नॉलेज काइंड ऑफ क्विज आप ले सकते हैं इसको. मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? इट इज़ अ जनरल अवेयरनेस अबाउट द नेचर, एंड इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ COVID-19 it is exceptionally it is really important for us to develop that particular quotient, a love for natural resources, right? Understanding about how to manage the natural resources so that it is not going to harm anyone, and those natural resources remain with us for a long amount of time. So let's proceed further. Going on to the next. क्या आप तैयार हैं? तो next question है बच्चों ये 5th question. The main cause of abundant coliform bacteria in the river Ganga. So let me give you a little overview of this question बच्चों. Coliform bacteria एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है coliform, और वो रिवर गंगा में मिला है. So किस कारण से मिला होगा? What is the main reason? How did this bacteria coliform reached river Ganga? Is it because of the disposal of unburned corpses into the water? कई लाशें हैं जो बिना जली हुई नदी में फेंक दी जाती हैं, डिस्पोज कर दी जाती हैं. Is it because of that? Is it because of the discharge of effluents from the electroplating industry? electroplating factories जो होती हैं, वहाँ से जो डिस्चार्ज निकल रहा है, उसके कारण ये बैक्टीरिया आया है, या फिर वॉशिंग ऑफ क्लोथ, कपड़ा धोने से ये बैक्टीरिया आया है, या फिर इमर्शन ऑफ एशेज, जो हम राख होती है ना किसी के मरने के बाद, या कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, और वो जो भी एशेज हैं वो लेकर के हम गंगा में बहा देते हैं, राइट? सो इज इट बिकॉज ऑफ दैट? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का रिवर गंगा में आना इन चारों में से किस चीज के कारण हुआ है? यू नो वेयर इज दिस कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट? This coliform bacteria is basically present in our intestine, in our human intestine. So last 5 seconds. Come on, answer quickly, otherwise the time will get over. And the time is up. Let us see what are the scores. So yes, 5 students have got it right. The main cause of abundant coliform bacteria in the river Ganga is because of disposal of unburned corpses into the water. बहुत सारे dead bodies, बिना जले हुए dead bodies, they are just dumped. Very serious issue. They are just dumped into the river. So if somebody was telling me that if you go there, you will find those dead bodies floating over. Not a good sign, right? But then some of you tried for discharges of effluent from industries. I know because of the previous question, correct? Or 2 of you have also tried for immersion of ashes, because of ashes. I'm sorry, because of burnt ashes coliform bacteria नहीं आ सकता है river गंगा में. Coliform bacteria is because of disposal of unburnt corpses into the water, right? Yes, Aman, it is disposal of unburnt, not corrosion corpses, right? It's not taking my answers. Oh no, this is Janvi. She clicked 4 times. Okay, maybe some issues with your device or with the internet issues. Be there with us. Let's see the scores. What the scores are after this question. Okay, so Afra has moved up
to first position with 3,197 points, as you can see over here on the screen, and followed by Astha, Hitesh, Janvi, and then Ashay. Hitesh has a highest answer streak of 3, so Hitesh is moving up. Afra and Astha, be careful and let us all move on to next question. देखते हैं next question क्या है. So this is our question number 6 for all of you guys. The pH range most conducive for the life of freshwater plants and animals is. The pH range most conducive मतलब बहुत जो comfortable है. कितना pH होना चाहिए फ्रेश वाटर में किसी भी चीज को जिंदा रहने के लिए, मतलब वहाँ की फिशेस हो गई, वाटर हो गया, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कौन सा पीएच रेंज सबसे सूटेबल है? इज इट 6.5 to 7.5, इज इट 2 to 3.5, और इज इट 3.5 to 5, और इज इट 9 to 10.5? व्हाट डू यू थिंक, व्हिच ऑफ देम इज द मोस्ट सूटेबल रेंज ऑफ द पीएच? पीएच का सबसे सूटेबल रेंज इनमें से क्या है? So we have got almost 40 seconds left. Think over it. You have learned about pH in your lower classes as well. 7th standard, there was a chapter about acids, bases, right? And you have heard this word, pH. pH is the power, potence, power of hydronium ion concentration. You will learn this in your chapter number 2, acids, bases and salts as well. But here we are learning it in context to the management of natural resources. So last 10 seconds left, guys. Last 5 seconds. Be quick in answering. Still some of you have not answered. Okay, so time's up. So we have got 10 persons answering this, and out of that 7 got it right. As you can see on your screen, the 7 persons got it right. So the pH range most conducive for life of freshwater plants and animals is 6.5 to 7.5. That is the ideal pH. तो आप देख रहे थे पिछले क्वेश्चन में, last 1 or 2 questions, we found that the pH, because of that lead accumulator batteries, the lead industry is putting its effluent into the water and the pH is becoming 3.5. So 3.5 पे तो they are going to die. For them the pH should be 6.5 to 7.5. See, the pH if it is below 7 it is acidic, right? If it is above 7 it is basic. If it is 7 it is neutral. So the pH range थोड़ा सा acidic, 6.5 से 7.5. Slightly acidic, slightly basic is very good for plants and animals. Definitely, some of you have tried 2 to 3.5. Definitely not. 2 to 3.5 on the other hand is going to be very very problematic for them. बहुत खतरनाक है उनके लिए. 2 से 3.5 में सब मर जाएंगे. Every plant and animal will die. So conducive मतलब जो उनके लिए favorable है. So remember, it should be 6.5 to 7.5. Not even on the basic side. Not, no. Basic side पे भी आप देख रहे हैं, basic side पे भी ठीक नहीं है. Even 9 to 10.5 is also not good for them. So it should not be very basic, should not be very acidic, somewhere at a very middle, okay, which is 6.5 to 7.5. Let's see what the scores are. Hitesh is on top, mind blowing, with 3,978 points, followed by Afra, Astha, Rishi and Ashay. Up 3 places. Okay, so Vishakha is climbing up very fast, computer says. So guys, be aware of Vishakha also. She's coming up. Hitesh is leading right now. Okay, let's proceed to the next question. There is some problem with Janvi's device. It's not taking my answers. Okay, so the next one, guys, is this one. The 3 R's. I hope you must have heard them. The 3 R's that will help you to conserve natural resources for a long time. 3 R's. Very important in this particular chapter. What are those 3 R's?
Is it recycle, regenerate, reuse? Is it reduce, regenerate, reuse? Is it reduce, reuse and redistribute? Or is it reduce, recycle and reuse? Which one of them do you think is the correct answer? The three big R's, which will help us conserve natural resources. ध्यान से सोचना. The big three R's. You've got 40 seconds left for this. What are the three R's of conserving the natural resources? If we follow these three R's, the nature will be saved. Nature will thank us for this. Great, Aman, very good. After answering, you have got enough time to chat also. Okay, so time's up. Great. This is beautiful. 10 of them appeared and all 10 of them are right. So it is reduce, recycle and reuse. So it makes me very happy. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब बच्चों को ये पता है, ये 3 R के बारे में पता है. So definitely you are all, yes, आप हमारी future generation हैं. So you are going to conserve the natural resources and you, through using reduce, पहले तो कम चीज़ें use करो, ठीक है. देन जो यूज़ कर चुके हो कोशिश करो कि उनको रीयूज़ कर लीजिए. देखिए कई बार क्या होता है कि आप कोई सामान घर में लेकर के आते हैं, वो किसी डब्बे में आता है, करेक्ट. सो मैनी अ टाइम्स व्हाट योर मदर विल डू इज़ गोइंग टू रीयूज़ दैट पर्टिकुलर कंटेनर. उसको वापस यूज़ कर लेते हैं किचन में कोई दाल या पल्सेस रखने के लिए. सो पहले तो कम यूज़ करिए और उसको फिर रिसाइकिल और रीयूज़ करने के लिए कोशिश करिए. रीयूज़, उसको वापस किचन में गए, किचन में वो डब्बा वापस यूज़ हो गया तो वो रीयूज़ हो गया, करेक्ट. या फिर उसको रिसाइकिल के लिए भेज दीजिए. रिसाइकिल से क्या होगा, इट विल अगेन बी मेल्टेड एंड अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सम कंटेनर्स एंड अगेन इट विल कम इनटू आवर लाइफ, राइट. सो रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज आर द करेक्ट थिंग. लेट्स सी द स्कोर्स. द स्कोर्स currently are Hitesh with a blazing 5,198 points, followed by Ashay, Afra, Astha and Usha. Up 3 places is Janvi. So Janvi is moving up very fast, very fast. Let us move on to the next question. अगला question देखते हैं क्या है. So get ready guys. So the next one, the 8th question is a successful forest conservation strategy should be. Successful forest conservation, अगर आपको अपने जंगलों को बचाना है तो इनमें से आप कौन सी strategy follow करने वाले हैं. प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, जो ट्रॉपिक लेवल में सबसे ऊपर के जानवर हैं उनको बचाओगे, दैट इज यानी कि टाइगर, लायन, उन सबको बचाओगे. या फिर प्रोटेक्शन ऑफ ओनली कंज्यूमर्स, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको बचाओगे, ठीक है. या प्रोटेक्शन ऑफ ओनली हर्बीवोर्स, या फिर वो जो घास खाने वाले जो जानवर हैं यानी कि जैसे कि डियर हुआ, उन सबको बचाएंगे. या फिर अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट the physical and biological components, यानी सारे components, जो physical components हो या biological components हो, आप एक comprehensive program बनाएंगे जिससे you will tackle to all these issues. Choice is yours. Successful forest conservation strategy इसमें से क्या होगी? You've got last 25 seconds. So we wait for the students to get the answers. Guys, last 5 minutes, let me warn you. Here the time's up and we have got 9 students giving the correct answer. That means a successful forest conservation strategy should be a comprehensive program, right? Because forest does not mean only plants and forest does not mean only animals, right? So protection of animals at the highest tropic level is just a part of it, will not be sufficient. Even protection of only consumers is not going to be sufficient, right? Because what are consumers eating? Some of them are like herbivores, so they are eating plants. So we should have a strategy
for protecting both the things, protecting animals as well as plants. तभी हमारे जंगल बचेंगे, क्योंकि जंगल मतलब कि plants and animals both the things. So we should have a comprehensive program. आपको समझ में आया? एक comprehensive program बनाना है जिसमें दोनों की ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, plants and animals. Let's see the scores. Scores are Hitesh with 6,310 leading the chart, followed by Ashay, Astha, Afra. Okay, so it is H and then followed by A, and then comes you. Okay, so Pawan is also moving up, crawling up fast. और हम भी fast crawl करते हैं अपने next question की तरफ. So get ready guys. This is the next question. Question number 9. In our country, हमारे देश में vast tracts of forest are been cleaned. बहुत सारे जंगल साफ कर दिए गए हैं. And a single species of plant is cultivated. कई बार पूरा जंगल साफ कर दिया जाता है और कोई एक चीज वहाँ पे उगा दी जाती है. This practice, अगर ऐसा करेंगे तो उससे क्या होने वाला है? क्या उससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी? क्या उससे मोनोकल्चर बढ़ेगा? क्या उससे ग्रोथ ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट बढ़ेगा? या उस इट प्रिजर्व्स द नेचुरल इकोसिस्टम इन द एरिया? उससे क्या होने वाला है? क्या बोल रहा है? आजकल बहुत सारे जंगल साफ कर दिए जाते हैं, मतलब क्लीन्ड अप, उनके सारे पेड़ काट दिए जाते हैं और वहाँ पर खेती की जाती है. करेक्ट? वी डू कल्टीवेशन ओवर देयर. और कल्टीवेशन भी कैसा करते हैं? वहाँ पे किसी एक ही फसल को उगाते हैं. तो इससे क्या होने वाला है? What is this practice going to promote us? Biodiversity, monoculture, growth of natural forest, or preserve the natural ecosystem in an area? Think about it. A very simple answer. A simple answer. Great. So 7 of you have given the correct answer. Congratulations. So in our country, the vast tracts of forests are cleaned and a single species of plants is cultivated. This practice promotes, ऐसा करने से क्या होगा? मोनोकल्चर. मोनो मतलब एक चीज, कल्चर मतलब उगाना. क्वेश्चन में वही बोल रहा है, सिंगल स्पीशीज उगाई जाती है. सो इट इज गोइंग टू प्रमोट मोनोकल्चर. बायोडाइवर्सिटी तो वो खत्म कर देगा. करेक्ट? बायोडाइवर्सिटी मतलब एक पर्टिकुलर जंगल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जानवर दिखाई देते हैं, कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, इवन प्लांट्स भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के दिखाई देंगे, पेड़ अलग अलग टाइप के दिखाई देंगे. दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. बट हम क्या करते हैं? उन जंगलों को साफ कर देते हैं और फिर कोई एक चीज़ वहाँ पे उगा देते हैं. राइट? वीट हो गया या फिर राइस हो गया. करेक्ट? वन थिंग वी आर ग्रोइंग ओवर देयर. सो डेफिनेटली उससे बायोडाइवर्सिटी तो होने वाला नहीं है. नेचुरल फॉरेस्ट को हम कट कर रहे हैं तो उससे नेचुरल फॉरेस्ट तो बिल्कुल बढ़ने नहीं थे. एंड प्रिजर्व द नेचुरल इकोसिस्टम. वी आर in fact we are destroying the natural ecosystem in that particular area. तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर यही था, monoculture in that particular area. Let us quickly see the scores, guys. Hitesh is leading with 7,613 points, followed by again A and followed by you. So Utkarsha is also climbing up. She has climbed up 3 places. So there are a lot of students who are moving up. So let us also move up to the next question. So the next question, guys, is this one. 10th question. 1/3 quiz is over. Which of the following is not a consequence of raising the height of dam? आजकल पता है बच्चों, आप आंसर भी क्वेश्चन भी सुन लीजिए. डैम की हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. There are already dams present. You know what dams are used for. तो डैम की हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. तो लोग क्या कर रहे हैं? उससे क्या होने वाला है? Not a consequence. अगर मैं डैम की हाइट बढ़ा देता हूँ तो इनमें से क्या चीज नहीं होने वाली है? टेरेस्ट्रियल फ्लोरा एंड फौना इज डिस्ट्रॉयड, dislocation of people and domestic animals, valuable agricultural land may be lost, or it will generate permanent employment for people. तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. आप डैम की हाइट अगर बढ़ाते हैं तो इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा? डैम की हाइट बढ़ाने से इनमें से क्या चीज नहीं होने वाली है? There are a lot of people who are against the increasing the height of dams, right, these days.
guys. We have got last 5 seconds left. Okay guys, so it is 4 people have given the correct answer. Congratulations, but there were 3 students who got wrong. So which of the following is not a consequence of raising the height of dam? डैम की अगर मैं हाइट बढ़ाने वाला हूँ, सो उससे इट इज़ गोइंग टू जनरेट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल. ये चीज़ नहीं होने वाली है. करेक्ट, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा जब तक वो डैम की हाइट बढ़ाएंगे. काम सिर्फ तब तक चलेगा, वर्कर सिर्फ तब तक काम करेंगे, तो परमानेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होने वाला है. सो दिस इज़ रॉन्ग. करेक्ट, डेफिनेटली डैम की हाइट बढ़ाने से डिसलोकेशन ऑफ पीपल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. यस, डैम की हाइट बढ़ाने से क्या होगा, ज़्यादा पानी रुकेगा तो पानी और पीछे तक जाके रुकेगा, तो और कई एरिया पानी में डूब जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों को, जानवरों को, डोमेस्टिक एनिमल को वहाँ से डिसलोकेट हो जाना पड़ेगा, मतलब वहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा. दैट इज़ वाई पीपल आर अगेंस्ट इट. टेरेस्ट्रियल फ्लोरा एंड फौना इज डिस्ट्रॉयड. डेफिनेटली पानी भर जाता है भाई उस एरिया में, तो वहाँ रहने वाले फ्लोरा एंड फौना यानी कि वहाँ रहने वाले जानवर, वहाँ रहने वाले पेड़ पौधे सब पानी में डूब जाते हैं. राइट. वैल्यूएबल एग्रीकल्चरल लैंड मे बी लॉस्ट. यस, जो लैंड जहाँ एग्रीकल्चर करते थे उसमें पूरे में पानी भर जाता है. सो ये तीनों चीज़ें सही थी. गलत सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन था कि इट विल जनरेट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, विच वॉज द आंसर. राइट. तो दिन बच्चों का गलत हुआ. अब आप समझ गए कि आपका राइट आंसर क्या था और क्या अटेम्प्ट करना है. तो देखते हैं स्कोर्स क्या चल रहे हैं. स्कोर्स, हितेश सबसे आगे हैं 7613 पॉइंट्स में. आस्था, उषा, आशय एंड आफरा. ओके, सो थोड़ा सा चेंज हो गया है सीक्वेंस. अब ए यू ए आ गया है. थोड़े दिनों से क्या चल रहा था, ए एंड यू. सो उषा हैज़ मूव्ड अप. दैट्स ग्रेट. सो हम भी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये है 11th क्वेश्चन. द इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय चिपको मूवमेंट. भाई ये चिपको मूवमेंट से क्या पता चलता है, क्या मैसेज आप तक पहुंचता है. चिपको मूवमेंट, आई नो फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड दिस वर्ड, लिटिल स्ट्रेंज, राइट. चिपको इज अ हिंदी वर्ड. चिपको मूवमेंट इज टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, or is to ignore the community in the forest conservation, or is it to cut down forest trees for developmental activities, or this Chipko movement is about the government has the right to cut trees in the forest. Only government has the right to cut trees in the forest. So what is this Chipko movement all about? शायद आपने कभी सुना होगा या ये चैप्टर आपको पढ़ने के लिए बोला गया था, तो शायद आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आप वेरी इजीली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. चिपको मूवमेंट क्या मैसेज आप तक पहुंचाता है? लास्ट 25 seconds. About to get over and the scores are 9 people have attempted, 8 of them got it right. Yes, चिपको मूवमेंट क्या बताता है? चिपको मूवमेंट बताता है कि टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मतलब वो अवेयरनेस पैदा करना चाहता है कम्युनिटी में, यानी हम सब में. चिपको मूवमेंट एक अवेयरनेस पैदा करना चाहता है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कि भाई लकड़ियों को मत काटो, पेड़ों को मत काटो, पेड़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. तो कम्युनिटी के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चिपको मूवमेंट के थ्रू पहुंचता है. ओनली वन ऑफ देम हैव गॉन रॉन्ग. इट सेज टू इग्नोर द कम्युनिटी. नो, चिपको मूवमेंट ये नहीं बोलता है कि इग्नोर करो कम्युनिटी को, बोलता है कि भाई ध्यान मत दो कंजर्वेशन के लिए, प्लांट्स के बचाने के लिए ध्यान मत दो. इनफैक्ट वो तो बोलता है कि सारी कम्युनिटी को बोलता है कि क्या करो, पेड़ों को बचाओ, एफर्ट्स लगाओ, पेड़ बचने चाहिए. जब तक पेड़ बचेंगे तब तक हम बचेंगे. राइट. और देख लेते हैं कि कौन कौन बच गया है यहाँ पे, कौन कौन टॉप में है अभी. आस्था. सो द सीक्वेंस हैज चेंज्ड.
So this is now AUHAA. Astha has moved up to the first position with 7,993 points. Usha has a streak with 6 correct answers in a row. Exceptional and excellent. So Usha has moved up. Astha ji bach ke rahiye. Usha is coming up. And she is connected all the way from Chennai. She is with us. Hitesh is with 7,613. Hitesh ji ने कल भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था हमारे मैथ्स के सेशन में, राइट? प्रोबेबिलिटी का क्विज था, एक्सेप्शनल. देन कम्स आशे जी, बहुत ऊपर आ गए हैं, और आफरा भी बहुत दूर नहीं है विद 6,290 पॉइंट्स. तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है. सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक. द 12th क्वेश्चन इज एक्सपैंड द एब्रिविएशन GAP. GAP का फुल फॉर्म क्या है? क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट एजेंसी फॉर पोल्यूशन कंट्रोल है? ध्यान देना. या फिर ये क्रॉस एसिमिलेशन बाय फोटोसिंथेसिस है, या गंगा एक्शन प्लान है, या गवर्नमेंट एजेंसी फॉर एनिमल प्रोटेक्शन? GAP का फुल फॉर्म क्या है? थिंक एंड आंसर. Last 20 seconds left for all of you. GAP का फुल फॉर्म क्या है? इनमें से GAP का फुल फॉर्म क्या है? क्या गवर्नमेंट एजेंसी फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, ऑप्शन ए, या फिर ग्रॉस एसिमिलेशन और बाय फोटोसिंथेसिस, या फिर गंगा एक्शन प्लान, या गवर्नमेंट एजेंसी फॉर एनिमल प्रोटेक्शन. एंड as you can see over here, the final scores are 9 of them have got it correct. It is Ganga Action Plan. Very well. बहुत बच्चों ने सही गेस किया है. बहुत ही कंफ्यूजन गेसेस में थे, बट इस चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड 10 का ये जो चैप्टर है, इसमें गंगा एक्शन प्लान, थोड़े दिनों पहले एक क्वेश्चन भी हमने देखा था, थोड़ी देर पहले, कुछ क्वेश्चंस पहले, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का, वो भी गंगा के ऊपर ही बात कर रहे थे, राइट? सो लेट अस सी द स्कोर्स. कौन ऊपर गया, कौन नीचे गया? Okay, so Astha's in the first position with 9,254 points, followed by Usha, Hitesh, Ashay and Afra. And Abhi is back with an answer streak of 3. Excellent, Abhi. Abhinaya is also moving up. So let us move down and go to the next one. Okay, so Pawan says I've got the correct answer. Great, Pawan. बोलता है टाइम अप हो गया. So you have to be quick. So which of the following is not a natural resource? This is our 13th question. इनमें से कौन सा natural resource नहीं है? नहीं है, ध्यान देना. Which of them is not a natural resource? Mango tree, snake, wind or wooden house? इनमें से कौन सा वाला natural resource नहीं है? बहुत सिंपल है. वैसे तो बहुत सिंपल है. अगर आपको नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन पता है तो इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता. मैंगो ट्री, इज इट स्नेक, इज इट विंड और इज इट वुडन हाउस? Rishi says QUIZIZZ was a better one. ये अच्छा नहीं है. Okay, so here are the results. As you can see on your screen, we have got 9 people giving us the correct answer. Yes, इसमें से which of the following is not a natural resource?
Wooden house is not a natural resource. Mango tree is a natural resource. Snake, wind, all are natural resource. Let's move on. Let's see the scores. Astha is with 10,574 points, followed by Usha, Hitesh, Ashay and Afra, and the computer says Afra is making a comeback with 3 in a row. Well done, Afra. Let us move up to the next one. Next question बच्चों आपके स्क्रीन पे है ये. This is the 14th question. Select the wrong statement. इसमें से wrong statement pick करो. Wrong statement इसमें pick करनी है. Which one of them do you think is the wrong statement? Is it the forest provides variety of products? Forest have. Okay, so you all were very quick. Okay, I don't know, there is some problem. Let's move on. So forest do not conserve soil. ये एक wrong statement है. Yes, forest do not conserve soil. Okay, let's move on to the next one. Asta's on top. Let's move on to the next question. टाइम अप हो गया. ओके, शायद इस क्वेश्चन के लिए आई हैव नॉट गिवन इनफ टाइम, राइट. 90 सेकेंड्स का जो टाइम लॉट था, आई थिंक वो नहीं था, कम टाइम दिया गया था शायद, इसलिए इससे पहले कि आप कोई ऑप्शन अटेम्प्ट करते टाइम अप हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. वी विल डू चेंजेस इन द क्विज एंड ब्रिंग इट बैक टू यू. द नेक्स्ट वन, 15th क्वेश्चन. Come on guys. अराबरी फॉरेस्ट ऑफ बंगाल. बंगाल में अराबरी फॉरेस्ट है एंड इट इज डोमिनेटेड बाय. वहाँ कौन सी चीज सबसे ज्यादा है? कौन सी चीज? इज इट टीक ट्रीज, साल ट्रीज, बैम्बू ट्रीज और मैंग्रोव ट्रीज? Arabari forest in Bengal is dominated by. वहाँ सबसे ज्यादा कौन से पेड़ मिलते हैं? टीक के पेड़ मिलते हैं या साल के पेड़ मिलते हैं या बैम्बू के पेड़ मिलते हैं या मैंग्रोव्स के पेड़ मिलते हैं? Which one of them? Choose wisely. Which one of them? अन्ना भाई says कहूँ बेकार है. I know. It makes you little frustrated if कभी-कभी अगर आपके ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं या टाइम अप हो जा रहा है या डिले हो जा रहे हैं आपको आंसर देने में. I know you all are very excited. You all want to score good marks. So here are the scores. 9 people have got the correct answer that Arabari forest in Bengal is dominated by the sal trees. वहाँ बहुत सारे साल ट्रीज होते हैं. 2 लोग गलत हो गए. They thought it is bamboo trees and even one of them thought it is mangroves. No, it is the Arabari forest in Bengal is dominated by the sal trees. Next one. Yes, बहुत सारे चैट में आंसर आ रहे हैं. ऋषि, पवन, साल साल साल. Even Aman said sal trees. Okay, let's move on to the next one, but before that results देख लेते हैं. Astha top 11,320 points, followed by Usha, Hitesh, Ashay and Afra. So this is the leaderboard, scoreboard. So let's move on to the next one. देखते हैं क्या अगले क्वेश्चन के कारण हमारे इस स्कोर बोर्ड में कुछ चेंजेस आने वाले हैं. क्या उषा ऊपर जाने वाली है? हितेश ऊपर जाने वाला है? क्या आस्था नीचे आने वाली है? इन सब चीज़ों के लिए बने रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. So this is the 16th question guys. 15 हो गए, लास्ट 15 बचे हैं.
ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डिप्लीटेड ड्यू टू, आपको पता है ग्राउंड वाटर भी खत्म होता जा रहा है। जमीन के अंदर जो पानी है, अब आपको जो वेल है वो बहुत ज्यादा डीप आपको अंदर जाने के बाद पानी मिलता है, तो ग्राउंड वाटर तो कम होता जा रहा है। पर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इनमें से किसके कारण ग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं होता है? ध्यान से सुनना, ग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं होता है। एफॉरेस्टेशन से ग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं होता है, कि थर्मल पावर प्लांट से नहीं होता है, कि लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड डिक्रीज्ड रेनफॉल, या फिर लास्ट ऑप्शन क्रॉपिंग ऑफ हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स। क्रॉपिंग ऑफ हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स का मतलब ऐसी फसल उगाई जाती है जिसके लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसके लिए अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं है द रीजन। Let's see what's up. 20 minutes, 20 seconds are left. Last 20 seconds are left. We are doing MCQ quiz on management of natural resources part 1. So groundwater will not be depleted due to एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन से ग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं होता है। एक बच्चा बोलता है थर्मल पावर प्लांट से नहीं होता है, नहीं, डेफिनेटली थर्मल पावर प्लांट से तो अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाता है, बिकॉज थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, नीचे से स्टीम या वो हॉट वाटर का यूज़ करते हैं, तो इसलिए पानी खत्म हो जाता है अंडरग्राउंड वाटर। नेक्स्ट, लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड डिक्रीज्ड रेनफॉल। डेफिनेटली रेनफॉल कम होगी, करेक्ट, तो कम पानी जमीन में जाएगा, तो डेफिनेटली इट लीड्स टू लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, करेक्ट। और लास्ट था क्रॉपिंग ऑफ हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स। तो करेक्ट आंसर आपका था एफॉरेस्टेशन से कुछ असर नहीं पड़ता हमारे ग्राउंड वाटर को, बट हाँ रिजल्ट्स पे ज़रूर कुछ असर पड़ता है। तो देखते हैं रिजल्ट्स। सो उषा हैज़ मूव्ड अप, यही मैं आपसे बात कर रहा था। आस्था हैज़ गॉन डाउन टू पोजीशन नंबर 2 and Usha has moved up with 11,892 points, followed by Hitesh, Afra and Ashay. AAAUH, यहीं पे घूम रही है पूरी स्टोरी। AAA, ट्रिपल A, H and U। चलिए देखते हैं हमारी अगली स्टोरी, यानी कि हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा 17th क्वेश्चन। ऑपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स इज ड्यू टू। आजकल बहुत लोग लार्ज डैम्स के कंस्ट्रक्शन को मना कर रहे हैं कि बड़े बड़े डैम्स मत बनाओ बड़े बड़े डैम्स। क्यों? सोशल रीजंस के कारण मना कर रहे हैं क्या, कि इकोनॉमिक रीजन, मतलब पैसा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, इसलिए लार्ज डैम्स नहीं बना पा रहे हैं, कि कोई एनवायरमेंट इश्यूज हैं, या फिर ये सारे इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, या ये सारे इश्यूज हैं। ऑपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स, पहले आपको पता होना चाहिए कि देयर इज लॉट ऑफ ऑपोजिशन। आजकल मना कर रहे हैं लोग कि बड़े बड़े डैम्स मत बनाओ। किस कारण से मना कर रहे हैं, चॉइस आपको करना है। ओहो, अन्ना भाई से मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। There is full 90 seconds to answer. Full 90 seconds. It is better to answer late than to answer wrong. But the best one is to answer fast and answer correctly. But if you can't do that, just read the question and answer it fast. Last 10 seconds are left. Let's see how many of you get it right. We have already received 10 answers. Okay, so here are the scores as you can see. 10 people have got it correct, only one of them got it wrong. So the opposition of construction of a large dam is not only because of social reasons, not only because of economic reasons and environmental reasons, it is because of all the reasons. Definitely पैसा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, environment के issues भी हैं, correct, बहुत सारा जो agricultural land है वो पानी में चला जाएगा,
सारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको रीलोकेट करना पड़ेगा, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनको रीलोकेट करना पड़ेगा, बहुत सारे सोशल इश्यूज भी आ जाएंगे. सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ देम. और हमारे पास भी मिक्सचर्स हैं हमारे रिजल्ट्स का. उषा ऑन टॉप विथ 12,722 पॉइंट्स, followed by Astha, Hitesh, Afra and Ashay. And 5 players have reached answer streak of 3. Great. So जितने बच्चे भी अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके लास्ट 3 आंसर्स करेक्ट हो गए हैं. So they are your competitors. So Usha, Astha and Hitesh, watch out for the rest of the students. वो भी compete कर रहे हैं. They are not going to allow you to win. तो बने रहिए हमारे साथ. देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. ध्यान से सुनना. खानदिन्स, बंदीज और यू कॉल इट बुंदीज एंड अहर्स, ये जो 3 चीजें हैं, खानदिन्स, बुंदीज एंड अहर्स, दे आर एंशिएंट स्ट्रक्चर्स. ये पुराने ज़माने के स्ट्रक्चर्स हैं हमारी कंट्री में. और वो किस लिए बने थे? ध्यान देना, वो किस लिए बने थे. ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं वो किस लिए बने थे? ग्रेन स्टोरेज करने के लिए, मतलब हमारा जो अनाज है उसको रखने के लिए, या लकड़ियों को रखने के लिए, या पानी को बचाने के लिए, या सॉइल को बचाने के लिए. व्हाट डू यू थिंक? अगर आपने ये चैप्टर एक बार भी रीड किया होगा तो इसका आंसर कभी भी आप गलत नहीं देंगे. खादिन्स, बुंदीज एंड अहर्स एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं, पुराने ज़माने के स्ट्रक्चर्स हैं. इसलिए यूज होते थे. People are still thinking about it. Great. Think and give the correct answer rather than giving wrong answer. She says मेरा 30 seconds में ही टाइम अप बता रहा है. Oh God. So you need to be little quick to answer then. Aman says in the chat it is soil conservation. No, Aman. See over here. It is water harvesting. यानी पुराने ज़माने में भी पानी को कैसे हार्वेस्ट करते हैं, कैसे वेस्ट होने से बचाना है, वो सब स्ट्रैटेजीज हमें पता थी. करेक्ट. आज भी हम वाटर हार्वेस्टिंग पे बहुत ज़ोर डाल रहे हैं. करेक्ट. नहीं तो क्या है, जो बारिश का पानी नीचे आता है वो सारा बह करके नदी नालों के थ्रू, ओके, रिवर में या नियर बाय ओशंस में चला जाता है. पूरा पानी वेस्ट हो जाता है. सो वी नीड टू हार्वेस्ट वाटर. और इसके लिए एंशिएंट लोग भी ये स्ट्रक्चर्स बनाए थे. खादिन्स, बुंदीज एंड अहर्स और भी हैं. These were the 3 examples of them. 3 लोगों ने सोचा कि ये ग्रेन्स को स्टोर करने का कोई तरीका है, और एक ने सोचा कि ये सॉइल कंजर्वेशन है. But it is not. It is for water harvesting. Next. रिजल्ट आपका है आस्था ऑन टॉप. कॉम्बो ब्रेकर आया है. 3 players just dropped their answer streak of 3. जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे अभी अभी कि बहुत सारे बच्चों का 3 करेक्ट आंसर्स एक साथ आया है, उसमें से 3 लोग ड्रॉप हो गए हैं. ये क्वेश्चन था वो रीज़न उनके ड्रॉप होने का. लेट अस मूव ऑन. हम भी ड्रॉप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ऋषि सेज ही इज फ्रस्ट्रेटेड विद दिस. कभी टाइम कम मिल रहा है, कभी कुछ हो रहा है. वी विल एड्रेस दिस इशू इन आवर रेगुलर क्लास, and let me look for some other alternative if this is not working. There are other alternatives like Socrates is also there. Let's try everything which is available for us in this universe, in this internet, right? Let us use everything. I'll come up with some good alternative to this. So combo breakers, 3 students गलत हो गए हैं. Okay, Pawan is also saying the same. पूरा नेटवर्क है फिर भी डिले हो रहा है.
मेरे इसमें ऑप्शंस नहीं बताया. I can understand. Let's finish with this quiz and we will address those issues in our regular class. Pick up the right combination of terms. Again it has ended. It has ended very fast. Abrupt ending. I think I have given 90 seconds for each and every one, but we can select time for each and every one separately. Maybe because of this, at some places I must not have selected the proper time. Maybe 10 seconds I have given. So right, आपको discuss कर लेते हैं. Right combination of terms which has no fossil fuel. इनमें से कौन से ऑप्शन में fossil fuel है ही नहीं? So it was the third option. Wind एक fossil fuel नहीं है, wood भी fossil fuel नहीं है, और sun भी fossil fuel नहीं है. Okay, let's move on to the next one. Asta's on top, followed by Usha, Hitesh, Afra and Ashay. Let's move on to the next one. 20th question, guys. Only 10 questions left, so be with us. Select the eco-friendly activity among the following. इनमें से कौन सी एक्टिविटी इको फ्रेंडली है? आपको बताना नहीं चाहिए कि इको फ्रेंडली क्या है, आप सबको पता है. इको फ्रेंडली एक्टिविटी इनमें से कौन सी है? यूजिंग कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यूजिंग पॉली बैग्स फॉर शॉपिंग, या यूजिंग डाइज फॉर कलर क्लोथ्स, या यूजिंग विंड मिल्स टू जनरेट पावर फॉर इरिगेशन. व्हिच वन ऑफ देम डू यू थिंक इज इको फ्रेंडली, हमारे लिए अच्छा है? कहूट ऑन किया तब तक खत्म हो गया, ऑप्शन ही खत्म हो गया, टाइम ही खत्म हो गया. सॉरी अभिनया, हो सकता है वो मेरी तरफ से प्रॉब्लम है. मैंने हो सकता है किसी क्वेश्चन के लिए प्रॉपर 90 सेकेंड्स नहीं दिए हैं. इधर आंसर था सेलेक्ट द इको फ्रेंडली एक्टिविटी. सो यूजिंग विंड मिल्स इज द इको फ्रेंडली एक्टिविटी ओवर हियर. करेक्ट. पॉलीथीन बैग्स यूज़ करेंगे तो वो इको फ्रेंडली नहीं होता है. और कार अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली और ज़्यादा पेट्रोल यूज़ होगा, और ज़्यादा आपका गैसेस प्रोड्यूस होंगी, पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करेगा, इको फ्रेंडली नहीं है. यूजिंग डाइज इन कलर्ड क्लोथ्स, ये भी इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि फिर जो उस फैक्ट्री के एफ्लुएंट्स होंगे वो या तो नियर बाय रिवर या फिर सी में चले जाएंगे. सो इट इज़ अगेन नॉट अ इको फ्रेंडली वे. करेक्ट. सो द ओनली इको फ्रेंडली वे ओवर हियर वॉज यूजिंग विंड मिल्स. नहीं अमन जी, आप बोल रहे हैं यूजिंग पॉली बैग फॉर शॉपिंग. बोल रहा है इसमें से कौन सा इको फ्रेंडली है? पॉलीथीन बैग्स इको फ्रेंडली है? बिल्कुल नहीं. तभी तो प्लास्टिक बैन हो गया है, पॉलीथीन बैन हो चुका है. राइट. सो गाइज, नॉट लेट अस नॉट टेक Kahoot in a wrong sense. Kahoot is a very good platform, right? But maybe on this internet right now, because we are controlling it from remote, right? This is a remote controlling. I am playing it in my screen, sitting in my house, and you all are with your devices in your individual houses. Maybe the problem is coming because of that. Once we are in an offline situation, like where you see this question in front of you, right? We have a big screen, you know. So if you see the question in front of you and you join there itself, okay, a closed environment, so there I think it will give you a better result, a good results, right? So bear with me. Somewhere I think it is because of my mistake we are going for less time. So I'll be more careful next time. I'll check whether the time is 90 seconds for each and every questions. Let's move. Let's see the results. It is Asta on top with 13,883 points, followed by Usha, Hitesh, Afra and Ashay. That's great. Let's move on to the next question, guys. The next question जल्दी देखना है.
21st क्वेश्चन, बिश्नोई कम्युनिटी जो राजस्थान में रहती है, बिश्नोई कम्युनिटी, इसमें पूरे 90 सेकेंड्स मिल रहे हैं आपको। बिश्नोई कम्युनिटी इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ, राजस्थान में एक बिश्नोई कम्युनिटी है, वो कंजर्वेशन पे काम कर रही है। किसके कंजर्वेशन पे काम कर रही है? कोल पेट्रोलियम के, या फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, या वाटर रिसोर्सेज के कंजर्वेशन पे, या फिर एबायोटिक एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन पे। आई थिंक यू नो व्हाट आर एबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट? देयर आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो उन पे काम कर रही है। किस पे काम कर रही है? राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी। कोल पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, वाटर या एबायोटिक एनवायरनमेंट। टाइम अप। यस, अमन जी भी बोलते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अमन जी मैं आपको बता दूं, आप सही हैं। इट इज़ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसके लिए बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान की बहुत काम कर रहे हैं। ये लोग बहुत काम कर रहे हैं कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको कंजर्व करिए, नहीं तो कल को हम सब साफ़ हो जाने वाले हैं, हम सब साफ़ हो जाने वाले हैं। इट इज़ तो इसलिए फॉरेस्ट को काटिए मत, वाइल्ड लाइफ को मत डिस्टर्ब करिए, उनको वैसे ही रहने दीजिए, राइट? 3 लोग सोचते थे, 3 ऑफ द पीपल आर थिंकिंग दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सो बिश्नोई कम्युनिटी, क्योंकि राजस्थान, उन्होंने सोचा शायद राजस्थान मतलब कि कम पानी तो हो सकता है, वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत था। आपने अच्छा गेस मारने की कोशिश की थी, बट इट इज़ वर्किंग फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, right? So remember that. Okay, let's see the scores for this one. Asta on top with 14,820 points, followed Usha is very close with 14,200 points. एक आंसर अगर आस्था का गलत हुआ और उषा का राइट हुआ, so the story will change. Hitesh is also on 14,000 points because almost each question gives you 1,000 marks, right? If you answer it very fast. उसके काफ़ी पीछे आफरा जी हैं 14 के बाद डायरेक्ट 11 पे, बट थोड़ा ही पीछे आशे जी हैं विद 11,260 पॉइंट। सो वेल डन गाइज एंड कीप अप द गुड वर्क, लगे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद 8 क्वेश्चंस और आने वाले हैं। चिपको आंदोलन, ओ गॉड, वी हैव ऑलरेडी 1 क्वेश्चंस ऑफ चिपको आंदोलन, तो ये तो बहुत आसान हो जाने वाला है। चिपको आंदोलन किस चीज़ से एसोसिएटेड है? विच वन ऑफ देम? Is it associated with tigers? Is it associated with turtles? कछुआ, turtles, या trees, या tomatoes? बहुत सारे टोमेटो खत्म हो रहे हैं, उनका रेट बढ़ रहा है, तो उसके लिए चिपको आंदोलन काम कर रहा है क्या? किस चीज के लिए? Teas, tiger, turtle, trees and tomatoes. So type the correct answer. चिपको आंदोलन। It's the last 30 seconds. Hypnos Gaming says, okay, so maybe it is Hitesh or Pawan says, a new virus came in Europe yesterday. Don't worry, Hypnos Gaming, we are safe in our houses and Europe is far away right now. So focus on the gaming right now, focus on giving the correct answer. And the scores are 10 people have got it correct कि चिपको आंदोलन जो है वो ट्री से रिलेटेड है, एकदम सही। पेड़ बचाओ,
करेक्ट, इंसान को बचाओ, पेड़ बचाओ, फ्यूचर बचाओ. So 10 and all 10 has given the correct answer. So देखते हैं किस किसने अपनी पोजीशन बचा ली है. Asta still holds the top position 15,800 followed by Usha 15,200. Hitesh also 15,200. So all first, second and third positions are neck to neck. एकदम कांटे की टक्कर चल रही है, देख रहे हैं ना आप लोग. और कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि अभी हैज़ द हाईएस्ट स्ट्रीक ऑफ 3. वेरी गुड अभिनया, यू आर ऑल्सो कमिंग अप, ग्रेट. हो सकता है शायद आप पोजीशन नंबर 6 या 7 पे हो, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है हमारे स्क्रीन पे. इट इज़ शोइंग ओनली द फर्स्ट टॉप 5 प्लेयर्स, आउट ऑफ विच द टॉप 3 प्लेयर्स आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 23rd क्वेश्चन है. द रिवर वाटर इज सेड टू बी एसोसिएटेड विद एसिडिक वेस्ट इफ द pH ऑफ द वाटर इज. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना. अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिवर वाटर एसिडिक है तो उसका pH कितना है रिवर वाटर? 0 है, अबव 7 है, बिलो 7 है या एग्जैक्टली 7 है? अगर आपको याद होगा कुछ क्वेश्चंस पहले मैं आपको रिवर वाटर के बारे में बता ही रहा था कि कब रिवर वाटर एसिडिक होता है, कब वो न्यूट्रल होता है और कब वो बेसिक होता है. अगर आपने वो चीज़ ध्यान से सुनी होगी तो यहाँ आप आराम से आंसर दे सकते हैं. स्टिल 50 सेकेंड लेफ्ट. रिवर वाटर एसिडिक होगा तो उसका pH कितना होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एंड आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग योर आंसर्स क्विकली. वेल डन गाइस. सो कीप योर ears also open. Listen to all the things which we say in the quiz. Listen to your teachers in your schools and through your eyes read all the content from the textbook. Okay guys, so the 10 students have answered, 4 of them got it correct. Yes, मैं आपको फिर से बता दूं, ध्यान से सुनिए. आशय पुरोहित जी, वायरस की चिंता मत करिए. यहाँ पे जो कहूट का जो वायरस है जो हम सबको लग गया है, करेक्ट, YouTube प्लेटफॉर्म का वायरस जो हम सबको लग गया है, वो बहुत अच्छा वायरस है. पढ़ाई का जो वायरस लग गया है, जो सुबह सुबह आप पहुँच गए हैं यहाँ 8 बजे क्विज़ अटेम्प्ट करने के लिए, वो बहुत अच्छा वायरस है. वो वायरस स्प्रेड होना चाहिए. करेक्ट. आंसर्स देख लेते हैं. 4 बच्चों ने बोला है बिलो 7. यस, आपको फिर से बता दूं, एसिडिक का मतलब है बिलो 7. अबव 7 क्योंकि टोटल 14 का रेंज है, 0 से लेके 14 का रेंज है. जो 0 है और 7 तक जो है, फर्स्ट 7 वो एसिडिक है, और 7 से लेके 14 जो है वो है अल्कलाइन या बेसिक, और जो मिडिल में जो 7 है दैट इज़ न्यूट्रल. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि रिवर वाटर एसिडिक है तो pH क्या होगा? डेफिनेटली pH बिलो 7 होगा. एक बच्चे ने बोला pH 0. नहीं बेटा, pH अगर 0 होगा तो इट इज़ हाईली एसिडिक. जैसे हमारे स्टमक में जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका pH भी 1 या 2 होता है, तो उससे भी ज़्यादा एसिडिक. कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने, इनफैक्ट 5 बच्चों ने, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चूज़ कर लिया अबव 7. नहीं, एसिडिक के लिए बिलो 7 होता है, अबव 7 तो अल्कलाइन या बेसिक होता है. राइट. सो आई थिंक ऑल दिस, ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है. इससे क्या होगा, आप क्विज भी खेल रहे हैं, साथ साथ में आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जो काम हो रहा है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें करनी है. क्विज के मज़े भी लेने हैं, इंजॉय भी करना है, और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट्स जो आपके गलत हैं या जो आपके सही कॉन्सेप्ट हैं उनको रीइंफोर्स करना है. राइट. वी विल कम अप विद पार्ट 2 ऑफ दिस वेरी सून. मे बी टुमारो मॉर्निंग वी मे कम अप विद द पार्ट 2 ऑफ दिस. राइट. तो ये सब के बाद देखिए, कुछ बच्चों ने मुझे पूछा है कि सर हमने अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो क्या ये क्विज मुझे हेल्पफुल है? बिल्कुल है. आपको अब ये तो मालूम पड़ा कि चिपको किससे रिलेटेड है, बिश्नोई कम्युनिटी वाले क्या काम कर रहे थे, या एसिडिक pH क्या होता है, बेसिक क्या होता है, रिवर्स में अगर pH कितना हो जाए, या कौन सी फैक्टरीज़ के कारण आपका pH लेवल नीचे जा रहा है. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है क्विज़ के थ्रू.
right? Or from this year we have got 20 marks for MCQ, so this is extremely important, right? आप ये पूरा quiz सुनिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सुनिए. It will be on the YouTube platform after this, right? Let it play, listen to them again. Okay, so what is this going to do? आपके माइंड में ये सब रजिस्टर कर लेगा, और इसके बाद जब आप अगर वो चैप्टर खोलेंगे ना, बिलीव मी यू विल लव इट. आपको बहुत पसंद आएगा वो चैप्टर में. आपको बहुत सारे पॉइंट दिखाई देंगे तो आप बोलेंगे यस आई नो अबाउट दिस, यस मैंने इसका गलत आंसर दिया था, यस मैंने इसका करेक्ट आंसर दिया था. और चलते हैं देखने के लिए कि कौन है. उषा जी टॉप पे आ गई हैं विद 16,355 पॉइंट्स, फॉलोड बाय हितेश. सो आस्था जी पॉइंट 3 पे पहुंच गई हैं, नंबर 3 पे. उषा और हितेश ऊपर चले गए हैं. उषा एंड हितेश बोथ आर विद, एज यू कैन सी, विद 16,300, वेरी क्लोज टू ईच अदर. कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है. आस्था इज ऑल्सो विद 15,000 पॉइंट्स. आशय 13,000. आफ्रा इज विद 12,209 पॉइंट्स. ओके, वेरी गुड. कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि 3 प्लेयर ऐसे हैं जो 4 करेक्ट आंसर एक रो में दे चुके हैं. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू मिस्टर कंप्यूटर. वो भी कुछ ये हिडन चीज़ें हमारे सामने लेकर के आते हैं, कुछ अचीवमेंट्स जो ये 5 बच्चों के तो अचीवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वो कंप्यूटर जी उन हिडन बच्चों के भी अच्छी चीज़ें हमारे सामने लेकर के आते हैं ना, गुड थिंग्स अबाउट यू, एंड सो दैट आप लीव ना करें, आप क्विज में बने रहें. Let us move on to the next question. Only few questions left. This is 24th. इसके बाद सिर्फ 6 क्वेश्चन बचे हैं. The major program started to replenish the damaged forest. देखिए फॉरेस्ट बहुत सारे खत्म होते जा रहे हैं, तो एक प्रोग्राम बनाया गया कि चलो क्यों ना इन फॉरेस्ट को फिर से रिप्लेनिश किया जाए, मतलब वापस पेड़ लगाए जाए. कौन सा प्रोग्राम है जो इसके लिए चलाया जा रहा है? हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एग्रीकल्चर या सिल्वीकल्चर? करेक्ट. वी ऑल नो कि प्लांट्स काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. सो नाउ पीपल आर अवेयर, वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं. तो कौन सा प्रोग्राम है जो डिफॉरेस्टेशन में हेल्प कर रहा है, पेड़ों को लगाने के लिए हेल्प कर रहा है? इज इट हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एग्रीकल्चर और सिल्वीकल्चर? वेरी डाइसी क्वेश्चन, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Last 5 seconds left. 4, 3, 2, 1, and it's up. And let's see the scores. So guys, the scores are 8 of you got it correct. That the major program started to replenish the damaged forest is called, what is it called? It is called silviculture. Right, थोड़ा अलग सा वर्ड है, but it is silviculture. जो नए नए पेड़ लगाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट को बचाया जा रहा है, रिप्लेनिश किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर. एक बच्चे ने हॉर्टिकल्चर किया था. नहीं, हॉर्टिकल्चर थोड़ा सा अलग है. आई थिंक हॉर्टिकल्चर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो आपके जो गार्डन्स बनाए जाते हैं जहाँ काफ़ी डेकोरेशन किया जाता है, अलग अलग टाइप के पेड़ लगाए जाते हैं. करेक्ट, अच्छे से उनको डिज़ाइन दिया जाता है. जैसे कि कोई पार्क होते हैं ना, जहाँ बहुत अलग अलग टाइप के फूल लगाए जाते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, कलरफुल बनाया जाता है, वो सब आई थिंक हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है. टिश्यू कल्चर तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहा था, और एग्रीकल्चर भी कहीं स्टैंड नहीं करता था. करेक्ट. सो सिल्वीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बट आई एम हैप्पी कि बहुत सारे बच्चों ने ये सही जवाब दिया है. तो मुझे लगता है अगर तो उषा ने हॉर्टिकल्चर दिया होगा तो फिर से पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पर अगर नहीं तो आई थिंक स्कोर्स वही रहने हैं जो लास्ट टाइम होने. चलिए देखते हैं स्कोर्स क्या हैं. यस, मैंने आपको बोला था हितेश हैज़ मूव्ड अप. हितेश हैज़ मूव्ड अप विद 17,592 points, followed by Usha has come down to point number 2, position number 2, followed by Astha is on position number 3. तो 17,000, 17,000, 16,000, और उसके बाद काफ़ी बड़ा गैप है. आशय जी के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई 13,000 से 16,000 में पहुंचने के लिए.
आफरा जी 12,000 में है, वो वेरी क्लोज हैं 13,000 के, तो आफरा जी ऊपर आ सकती हैं अगर आशय ने एक आध आंसर गलत दे दिया तो। ऊपर बहुत कड़क मुकाबला चल रहा है। सो 3 players हैव रीच्ड आंसर स्ट्रीक ऑफ 5। ओके, हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने 5 आंसर्स करेक्ट दिए हैं एक रो में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दो स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान से देखिएगा। विद विच ट्री अमृता देवी बिश्नोई इज एसोसिएटेड। आपने अभी भी देखा था, एक क्वेश्चन था बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान वाला, यहाँ पे भी वही बात हो रही है। अमृता देवी बिश्नोई ये एक बहुत जबरदस्त लेडी थी, करेक्ट। ये कौन से पेड़ से एसोसिएटेड थी? खजूर का पेड़, खिजराली का पेड़, या खेजरी का पेड़, या कीकर का पेड़? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर क्या है वो आपको सोचना है कि अमृता देवी बिश्नोई कौन से पेड़ के साथ एसोसिएटेड थी? खजूर, खिजराली, खेजरी या कीकर? So we always bring you all the possible questions, ठीक है ना। कल का जो क्विज होने वाला है वो और ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम और डेप्थ में जाने वाले हैं चैप्टर में, और छोटे छोटे क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट आउट फॉर यू, ऑल एमसीक्यूज। आपको क्या करना है? सिर्फ बैठ के सुनना है, पार्टिसिपेट करना है, आपका काम हो जाता है खत्म। रिजल्ट्स देखते हैं। सो रिजल्ट्स हैं भाई, 6 लोगों ने करेक्ट कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2 बच्चे गलत हो गए। 2 बच्चों ने चूज किया था खिजराली। आई एम सॉरी, खिजराली इज नॉट द ट्री। आई थिंक खिजराली एक जगह का नाम है। ओके, सो जो कौन से पेड़ से एसोसिएटेड है अमृता देवी बिश्नोई, वो हैं खेजरी ट्री से एसोसिएटेड है, खेजरी। ओके, खजूर कहीं भी सीन में नहीं है और कीकर भी कहीं भी सीन में नहीं है। सो याद रखिए, आज के बाद पूरे साल भर आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम तक कि अमृता देवी बिश्नोई जी जो हैं वो खेजरी ट्री से एसोसिएटेड हैं। शायद खेजरी ट्री के प्रिवेंशन, बचाने पर वो काम कर रही थी। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। पवन जी बोलते हैं फिर से टाइम अप हो गया। इस बार तो पूरे 90 सेकेंड्स मिले थे बेटा। चलते हैं, स्कोर्स क्या चल रहे हैं अभी। उषा जी इज इन पोजीशन नंबर 1 with 18,447 पॉइंट। हितेश एंड आस्था आर वेरी वेरी क्लोज। देखिए 17,592 एंड 17,517, फॉलोड बाय आफरा एंड नितिश। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। विपनॉस गेमिंग बोलते हैं सर खिजराली इज अ ट्री। ओके, पता नहीं, मुझे लग रहा है खिजराली ट्री नहीं है। 26th question guys, the poisonous gas which reduces the oxygen carrying capacity of the blood to a large extent। इनमें से कौन सी गैस है जो बहुत पॉइजनस है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है? आपको पता है हमारा जो ब्लड है, ब्लड में आरबीसी है और आरबीसी में ऑक्सीजन अंदर जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास जाता है। तो इनमें से कौन सी गैस है वो अगर हमारे आसपास होगी तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इनफैक्ट वो ट्रांसफर करेगी हमारे ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के थ्रू। इज इट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, इज इट कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और इज इट कार्बन डाइऑक्साइड CO2? वेरी वेरी पॉइजनस गैस। इसलिए आपको ये भी बोला जाता है कि रात को खास करके लोग सर्दियों में क्या करते हैं, हीटर्स चला देते हैं, राइट। तो बोलते हैं कमरे को पूरी तरह से कंप्लीटली बंद मत करो, क्योंकि if you are going to close the room completely, तो ये वाली पर्टिकुलर गैस एकदम क्रिएट हो जाने वाली है अंदर और आपको प्रॉब्लम देने वाली है। 6 बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड करेक्ट आंसर है।
तो जब मैं आपको बता रहा था ना, जब आप पूरा कमरा बंद कर देंगे और अंदर कोई हीटर या कभी कभी कोल फ्लेम, अंदर कोयला जला लेते हैं, तो अंदर क्या होगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होगा, करेक्ट। अगर आप रूम को पूरा बंद कर देते हैं तो अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हमारा कोई भी फॉसिल फ्यूल या कार्बन कंपाउंड जलता है, सो इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस, इज फार मोर पॉइजनस देन कार्बन डाइऑक्साइड। एक बच्चे ने सोचा कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 बच्चों ने सल्फर डाइऑक्साइड को क्लिक किया था। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो हार्मफुल टू अस, बट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, द हीमोग्लोबिन हैज़ एन एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, सो वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेगा एंड इट गेट्स ट्रांसफर टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, सेल के पास जाएगा और वो पॉइजन है। एंड बिकॉज इफ द ऑक्सीजन इज नॉट गोइंग, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसका बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त होता है हीमोग्लोबिन के साथ। आपको बस इतना याद रखना है कि इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ हाईली पॉइजनस एंड विच reduces the oxygen carrying capacity of the blood. Let us see किन किन लोगों के मार्क्स में फिर हेर फेर हो गया इस क्वेश्चन के कारण, क्योंकि 4 बच्चों के आंसर्स गलत हो गए, तो हो सकता है रिजल्ट्स में कुछ बदलाव आ गए हों। चलिए देखते हैं। यस, बदलाव आ चुके हैं। आस्था अगेन हैज़ मूव्ड अप टू पोजीशन नंबर 1 ऑफ 18,000. उषा इज विद सेकेंड 18,000 एंड हितेश इज अगेन विद 18,000. नीतीश के लिए कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि नीतीश मोहंती बैक, ही हैज़ come back. Okay, so he's on position number 4 with 14,000 points. And आशे जी, आफरा जी पिक्चर से निकल गई हैं with 13,763 points. आशे जी is on position number 5. तो देखिए एक एक क्वेश्चन में सब पूरे का पूरा आपका प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाता है, कौन ऊपर चला जाता है, कौन नीचे चला जाता है। क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? इनमें से कौन सी चीज फॉसिल फ्यूल नहीं है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से आंसर देना। एलपीजी, नेचुरल गैस, बायोगैस और सीएनजी, विच ऑफ देम इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? आपको पता होना चाहिए फॉसिल फ्यूल क्या है। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल, आपको पता है फॉसिल कैसे बनता है, तो कौन सा इसमें से फॉसिल फ्यूल नहीं है? लास्ट 25 सेकेंड्स, इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? लिटिल ट्रिकी है। आपको एलपीजी के बारे में तो पता है, हमारे सिलेंडर्स में एलपीजी होता है। नेचुरल गैस भी आपको पता है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बायोगैस भी आपने सुना होगा, राइट? हमारे आसपास तो नहीं है बायोगैस बिकॉज वी आर लिविंग इन अर्बन प्लेसेस, सो द आंसर इज बायोगैस। बायोगैस एक फॉसिल फ्यूल नहीं है। 4 students have got the correct answer, but oh God, 6 of them have gone wrong. जिसमें से 2 बच्चों ने बोला भाई नेचुरल गैस। भाई नेचुरल गैस तो फॉसिल फ्यूल है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम निकाला जाता है, उसके ऊपर ही नेचुरल गैस होती है बेटा, सो वो फॉसिल फ्यूल से ही मिल रही है। और बहुत सारे बच्चों ने, यानी 4 बच्चों ने बोला सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके, एंड नेचुरल गैस। सो जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, सीएनजी आजकल हमारे आसपास है, वो भी वहीं से मिल रही है, करेक्ट। सो बायोगैस जो ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जो लेफ्ट ओवर्स हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा हुआ, एनिमल वेस्ट हुआ, वो सबको एक बड़े से टैंक में डाल दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, एनारोबिक कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है और वो फर्मेंटेशन हो जाता है और फिर वो गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ कहीं पे भी फॉसिल फ्यूल की बात नहीं आ रही है, वी आर क्रिएटिंग इट, राइट? सो देयरफॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वाज बायोगैस एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी, आस्था जी, कंप्यूटर जी बोल रहे हैं आस्था हैज द हाईएस्ट आंसर स्ट्रीक ऑफ 4, दैट इज व्हाई शी इज ऑन टॉप। एक्सीलेंट आस्था जी, फॉलोड बाय हितेश, उषा, नितिश एंड आशय।
Let us move on to the next one, guys. 28th question. इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, बने रहिए. Snakes are killed in large numbers because. क्यों बहुत सारे सांपों को मारा जा रहा है? Why they are killed? क्योंकि वो पॉइजनस है इसलिए. They kill rats. अच्छा, वो हमारे चूहों को मार देते हैं इसलिए हम उन्हें मार रहे हैं, या फिर उनकी स्किन बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए उनको मारा जा रहा है. या लास्ट ऑप्शन है, they damage the crops. Snakes damage the crops. Which one do you think is the correct option? Why are the snakes being killed in large numbers? Answer was last 45 seconds. इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं. 2. So the scores are there in front of you. 6 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है कि हाँ, स्नेक्स को उनकी स्किन के लिए मारा जा रहा है. यस, उनकी स्किन से बेल्ट बनाई जाएंगी, बैग्स बनाए जाएंगे, ओके, और लग्जरी गुड्स बनाया जाता है, इसलिए बेचारे सांपों को मारा जा रहा है. पर एक बच्चा बोल रहा था क्योंकि वो पॉइजनस है. नो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. नॉट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, राइट? वी हैव गॉट नॉन वेनमस स्नेक्स ऑल्सो. बहुत बड़ी कैटेगरी है ऐसे सांपों की जो जहर नहीं होता है जिनके पास, right? In fact, I was attending a small seminar which was conducted by some of the snake lovers, and they say most of the snakes are killed because of thinking that they are poisonous. So many of them are not poisonous and they are harmless. और जब तक human beings उनके ऊपर attack नहीं करते हैं, they don't attack. They just hide. They want to be away from us. So it is not because they are poisonous. And एक बच्चे ने बोला है they damage the crops. Definitely snakes are not the reason. In fact, it is the rats which damage the crops. Snakes तो उन rats को खा करके उल्टा हमारी crops को बचाने में मदद करते हैं. So the correct answer was why they are killed. They are killed for skin. Let's move on to the next one, guys. So the next question. उससे पहले देख लेते हैं, हितेश जी फिर से ऊपर हो गए हैं with 20,000 points. So Hitesh is the first person to reach 20,000 points. Hitesh, this is for you. Followed by Astha, Usha, Nitish and Afra. Okay, competition बहुत ज़बरदस्त चल रहा है भाई. लास्ट आई थिंक 2 क्वेश्चंस हमारे पास बचे हैं. हितेश के 3 करेक्ट आंसर्स हो गए एक रो में. चलिए आगे चलते हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, देखते हैं. ओके, 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेक होल्डर इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो आपको ये टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि ये स्टेक होल्डर्स होते क्या हैं. स्टेक होल्डर्स होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं. जो लोग फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं उन्हें बोलते हैं स्टेक होल्डर्स. तो इनमें से कौन सा स्टेक होल्डर्स नहीं है? पीपल हु हैव पेपर मिल्स. जो पेपर मिल वाले लोग हैं, क्या वो फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं? आर दे समवेयर रिलेटेड टू फॉरेस्ट? मतलब फॉरेस्ट में कुछ अप डाउन होगा तो इनके ऊपर असर पड़ेगा. पीपल हु रन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्या ये लोग स्टेक होल्डर्स हैं? द पीपल हु आर कैंपेनिंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट बचाओ कर रहे हैं, क्या वो लोग स्टेक होल्डर्स हैं? या पीपल हु लिव इन अर्बन एरियाज, हमारे जैसे लोग जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, क्या वो स्टेक होल्डर्स हैं? आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेक होल्डर नहीं है. मतलब जो डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा है. एंड यू आर करेक्ट. ऑप्शन डी ऑप्शन वाज करेक्ट. द पीपल हु लिव इन अर्बन एरियाज, राइट. हम अर्बन एरियाज में रह रहे हैं. मैं अगर देखूँ तो मैं डायरेक्टली फॉरेस्ट मेरे से रिलेटेड नहीं है,
मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ ज़रूर, बट आई एम नॉट द स्टेक होल्डर्स, राइट. पीपल हु हैव पेपर मिल्स, डेफिनेटली भाई पेपर मिल में जो कपड़ा, जो पेपर मिल में जो कपड़ा नहीं, क्या बोलेंगे वो, जो पेपर जो आएगा पेपर मिल में, पेपर डायरेक्टली आपके पेड़ों से आता है, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि सारे के सारे पेड़ ना काटे जाएं. ठीक है, कुछ कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए. नए नए पेपर के लिए पेड़ की ज़रूरत तो है, बट नए पेड़ फिर लगाए जाएं. दूसरी तरफ पीपल हु रन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डेफिनेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तो फॉरेस्ट के लिए, कंजर्वेशन के लिए काम कर ही रहे हैं, सो दे आर स्टेक होल्डर्स. देन द पीपल हु कैंपेन, ये भी भाई वो लोग तो कोई नॉन गवर्नमेंट एनजीओज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कई जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे काम कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं कि फॉरेस्ट को मत काटो, तो डेफिनेटली दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स. एक लास्ट वाले ही हैं जो कि स्टेक होल्डर्स नहीं हैं. So let us come and see the score. Hitesh is with a blazing 21,000 followed by Astha and Usha. So अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ गया है. फर्स्ट वन 21, उसके बाद 20, फिर 19 और फिर 15. अब आ गए हैं बच्चों हम अपने लास्ट क्वेश्चन में, और देखते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन कैसे हमारे इस पूरे टेबल को बदल देता है. लास्ट क्वेश्चन है, एक आखिरी मौका आज के लिए. आपका क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. इनमें से कौन सा एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है. एक ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, खानदिन्स और वो सब. तो इनमें से कौन सा एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है. कटास, सरगम, कुल्स एंड सुरंगम्स, सब एंशिएंट नाम है. यानी इनमें से 3 एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक नहीं है. ध्यान देना बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन ये लास्ट क्वेश्चन ही डिसाइड करने वाला है. टेक योर टाइम. इज इट कटास, सरगम, कुल्स या सुरंगम. एकदम क्लाइमैक्स पे पहुंच चुके हैं. क्लाइमैक्स बस कुछ ही सेकंड में, 20 सेकेंड्स में पता चल जाएगा कि आज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस किसको मिलने वाला है. हु इज द टॉप वन, हु इज द सेकंड वन एंड हु इज द थर्ड वन. बने रहिए हमारे साथ. So I'm telling you, this is the best way to learn. अगर आप कहूट में नहीं भी हैं तो भी ये क्विज आपके लिए हेल्पफुल है. तो हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं ये. 5 students have got it right, 3 have got it wrong. देखते हैं रिजल्ट्स क्या हैं, पर पहले देख लेते हैं कि आंसर क्या था. इनमें से कौन सा एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है और सरगम नहीं है. सरगम तो म्यूजिक से रिलेटेड है, राइट. सुरंगम डेफिनेटली एंशिएंट में एक स्ट्रक्चर है. कटास भी है, कुल्स भी है. सो करेक्ट ऑप्शन, 5 लोगों ने बोला कि सरगम नहीं है एंड दे आर करेक्ट. आई नो यू आर ईगरली वेटिंग फॉर द स्कोर्स, so let us see. Even I am waiting eagerly for the scores. So the scores are, who's in the first position? Come on, any guesses? Top chat में लिख के बताइए. Who's the one, who's the winner? Come on, then I'm going to disclose it. चलिए जल्दी जल्दी, I'm waiting for your chats. Who is number 1? देखते हैं किसका guess correct होने वाला है. Still waiting? Come on, type fast. Who's the one? Who's the winner? आज का विनर कौन है? आज का विनर देखें. आज का विनर है हितेश. Congratulations Hitesh. Wow. With 22,190 points, 24 questions आपके करेक्ट हुए हैं 30 पे. Yes, Hitesh. Hypnos Gaming, Afra Deshmukh. Yes, it is Hitesh who's the winner for today's quiz. Followed by 21,000 for Astha. She has got 23 questions correct out of 30. And the third position goes to Usha from Chennai. And the other 2s are from Mumbai.
So with 19,922 point, Usha is on third position. Okay, so पूरा chat box भर गया है हितेश 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 से. So well done Hitesh, and well done for other two winners also, Ashtha and Usha. In fact, well done to all of you. I hope this quiz is helping you a lot, right? This quiz is helping you a lot, preparing you for your upcoming exams. So आप एक काम करेंगे, आप ये quiz जब भी आप ऐसे भूलेंगे, at least in a week you go through this quiz once. Okay, I'll keep updating new quizzes on this platform. Okay, but for now, काफ़ी देर से आप मेरे साथ बने हुए हैं, almost for the past 2 hours. So it is now time to take a break. Thank you very much for joining. This is Hemant sir signing off for now. Thank you.